अच्छी बात है। भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनका अभिनंदन करता हूँ। उन देश के लिए विकसित देश बनने के रास्ते के तरफ हमारा देश जा रहा है। इतना उपयुक्त ये बजट है, अच्छा बजट है। सभी क्षेत्र को, मुख्यतः मीडियम क्लास को उन्होंने दिलासा अच्छा दिया है। मैं दोनों का फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। किसानों को विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों और किसान है, मीडियम क्लास है, यूथ है, ये सब कुछ सभी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा दिलासा दिया। को थैंक यू सर। भाई साहब थोड़ा सा आप साइड रहना। पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, दो तरीके से पता चलता है। जब No, I think frankly the applause you heard from the BJP benches was for the middle class tax cut. We look at the details and that may be a good thing. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? Where is the income going to come from for you to benefit from income tax relief? You actually need jobs. Unemployment was not mentioned by the finance minister in her speech. And the generation of jobs becomes vital because in our country, not only do we have record unemployment, but youth unemployment is particularly grim at the moment. We have the world record in youth unemployment and in college educated unemployed. So what is the method to generate jobs for these people? Then they can get salaries and they can cheer the tax cut. But those who don't have salaries are not going to cheer the tax cut. The other concern that many of us clearly have about the budget is that the overall problems that are facing the economy were not addressed. Where is investment coming from? We've seen a decline in foreign direct investment, and we've seen no investment, no willingness on the part of the domestic investors to come in. 23,000 Indian millionaires have left this country and gone to foreign countries. Where is the investment coming from that will in turn generate more manufacturing that can lead to more exports? You can talk about manufacturing mission and export mission, but how do we get there? I think those details we need to study in more care, but I have not heard in the finance minister's speech enough to cheer in those areas. Sir, lots of announcement for Bihar. Well, with the elections coming up in Bihar, it's hardly surprising that they seem to be giving sops there. Ironic that the party that wants one nation, one election is actually using each election, each state, each year to give them more freebies. They may as well have multiple elections so that they can get more applause from their allies. सर किस तरह से देखते हैं बजट? मैं समझता हूं कि आज का बजट मध्यम श्रेणी के जितने भी नागरिक हैं भारतवर्ष के लिए, उनके लिए स्वर्णिम दिन है। ये न केवल मध्यम आय वर्गीय के लिए कि एक वरदान सिद्ध हुआ है कि 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि 16 से 20 लाख तक केवल 20 लाख का, और 20 लाख से और 24 लाख तक केवल 25 लाख का टैक्स का जो स्लैब रखा है, ये बहुत बड़ा वरदान है। हमारा बजटीय घाटा कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और जो फाइनेंशियल ईयर जो 26 है, उसके लिए 4.4% का वित्तीय घाटा का अनुमान, ये भी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का एक शुभ संकेत है। भारत में आईआईटी की व्यवस्थाएं ठीक हो, 5 आईआईटी को और बेहतर बनाना, 23 आईआईटी में दोगुनी सीट को कर देना, साथ में एआई का एक्सीलेंस सेंटर के लिए 500 करोड़ का दे देना, और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया है। जो कैंसर की दवाइयां थी वो सस्ती होंगी, 36 दवाइयों में ड्यूटी कम होगी। एक प्रकार से कहा जाए तो जीवन रक्षक दवाओं पर काफी कम हुआ है, और उड़ान योजना के माध्यम से ये भी एक महत्वपूर्ण है कि 120 नए एयरपोर्ट 10 सालों में होंगे। ये एक अच्छी वो है किसानों के लिए। कपास किसान का 5 साल का पैकेज है, तिलहन पे 50% से अधिक का उत्पादन हुआ है, और एमएसएमई एक वरदान साबित होगी
उसमें 10 करोड़ तक के ऋण की सुविधा दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस है किसानों के लिए, रक्षा के क्षेत्र में, अगर आप देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चारों चहुमुखी विकास का आधारशिला रखने वाला यह बजट महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और उद्योगों के लिए ये एक अच्छा बजट है। सर, बजट के दौरान ही जब समाजवादी पार्टी की तरफ से और बाकी अपोजिशन पार्टी की तरफ से वॉकआउट किया गया था महाकुंभ की घटना को लेकर, तो उस पर क्या? अब ये ऐसे लोग हैं जो कोई दुखद घटना होने का इंतजार करते हैं और फिर दुख में अपनी पार्टी का सुख तलाशते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं जिनको इतने बड़े कुंभ की व्यवस्था नहीं दिख रही थी। ये एक अवसर तलाश रहे थे, कोई घटना घट जाए और ये उस घटना पे राजनीति करे। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को जनता बुरी तरह नकारा है। अभी आप देखें ना, ये मिल्कीपुर भी हारेंगे और ये दिल्ली भी हारेंगे। देखो, बजट में एक्सेप्ट इनकम टैक्स जो 12 लाख तक कह रहे हैं, वो भी अभी पढ़ने की ज़रूरत है कि उसके एनेक्चर में क्या लिखा है, इफ्स एंड बट्स कितने हैं। बाकी तो बजट में कुछ नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई इशू नहीं है, कोई किसानों के लिए कुछ नहीं दिया, कोई गरीबों के लिए नहीं है, कोई नरेगा की बात नहीं करी, कुछ बात ही नहीं करी है। 2047, 10 साल, 5 साल जो बजट होता है ये एनुअल होता है। ये भगवान की कृपा से ऐसे लोग पावर में हैं जो 1 साल की बात ही नहीं करते हैं, 50 साल की बात करते हैं। अरे 50 साल तक आप रहोगे, कौन रहेगा, किसको क्या पता है। तो दे आर नॉट फोकस्ड। दिल्ली इलेक्शन की वजह से एक इनकम टैक्स का काम इन्होंने कर दिया है, वो भी पढ़ना पड़ेगा कि एनेक्शर्स में क्या क्या लिखा है। नथिंग इन द बजट, किसान एग्रीकल्चर के लिए नथिंग। बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, किसान के लिए कुछ नहीं किया, बोले ही नहीं है, इशू ही नहीं है। बढ़िया अंग्रेजी बोलने से थोड़ी बजट बनता है।